Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Sadaqallahul azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آل اسلامت. درس قرآن خاطر کر میں تہ برونٹ کن سورۃ النساء آیت نمبر 4 تلاوت. ام برونٹ کی بکر ام آئے مبارکہ تہ برونٹ کن ترجم اور مختصر ترجمانی بکر تہ پتمہ آئے مبارک مضامین بی اکہ ساتنس یاد دہانی تمن ہز تاکہ اس زن پتم آیات یم زن تمن ہند ربط یہ اس سمجھ یت آئے مبارکہ ست. پتمہ ترے آئے مبارکہ یم زن اس پڑ تات مز گۄڈنِچ آیتہِ مز اس خصوصی پیغام تمام دنیا کن انسان خاطر یہ کہ تمام دنیا انسان یم زن بحیثیت انسان یہ سبھی برابر ہیں. کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے, کسی امیر کو غریب پر فوقیت نہیں ہے, یا کسی عجمی کو یا عربی کو عجمی پر فوقیت, بلکہ بحیثیت انسان تمام لوگ برابر ہیں. اور یہ آئے ون کہ عورت جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں حقیقت نہ سمجھا جائے, کیونکہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ہی یعنی آدم کے ہی نفس سے پیدا کیا ہے. اور دویم آئے مبارکہ یس زن اوس تات مز آیو یتیم یم زن تمن ہند مالچ حفاظت آیو بہرحال حکم دن کہ یتیم کا مال جو ہے اس کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کیا جائے, یعنی اچھے مال کو چھوڑ کر اسے برا مال نہ سونپ دیا جائے. اسی طرح اس زن تم سن مال اس کو تبدیل کر کے اس کو بدل کر نہ دیا جائے, بلکہ جو اس کا مال ہے اس کو منو ان اس تک پہنچایا جائے. اور تیسری آیت زن اس میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں حکم ہوا تھا کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ اگر آپ نکاح کریں گے تو ان کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کیجئے. اگر آپ کو گمان ہو کہ آپ ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو چھوڑ کر آپ کسی اور عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. اور نکاح کی جو یا بیویوں کی جو زیادہ سے زیادہ تعداد اس کو بھی مقرر کیا گیا کہ ایک انسان ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. البتہ ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینا ہوگا. اگر عدل اور انصاف کے ساتھ کام نہیں لیں گے تو پھر تو انسان کے لیے صرف ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا ہوگا. بہرحال یم تم آیات یم زن ام برون پڑ, ان کے ضمن میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی بھی تفصیل آ گئی تھی, اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کے بارے میں جو اعتراضات مختلف لوگوں نے اٹھائے ہیں ان کا بھی بہرحال سیر حاصل بحث ان دونوں مسائل پر ہوئی. آج آیت زن یہ بھی بہرحال انہی یہ جو یتیم ہیں یا یہ جو عورتیں ہیں عورتوں کے ہی حقوق کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ آیت زن اس میں خطاب شوہروں سے ہے اور اس میں خطاب لڑکیوں کے ولیوں سے ہے. یعنی یہ آئے مبارکہ یہ زن میں تہ برونٹ کن پڑ ات مز مخاطب آمد بنان, ات مز خطاب آمد کرنے کمن اخ لڑکیوں کے جو شوہر ہیں اور دوسرا جو لڑکی کے ولی ہیں. لڑکی کے ولی سے مراد ہیں لڑکی کے جو مالک ہوتے ہیں, چاہے اس کا باپ ہو, چاہے اس کا دادا ہو, یا چاہے اس کا بھائی یا چچا ہو, تم گئی تم سن ولی. بہرحال ان سے یہ آیت مخاطب ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآتوا النساء صدقاتہن نہلہ, اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. یعنی جن عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کریں گے ان کو خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر ادا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. پس اگر وہ عورتیں
खुश दिली के साथ राजी होकर बगैर किसी दबाव के आपको उसमें से कुछ महर माफ कर दें या सारा ही माफ कर दें, फकुलू पास उसको आप खा सकते हो, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, हनी अम मरीआ बगैर किसी कुबाहत के मजे के साथ। ये आय मुबारक को लफ्जी तर्जम। बहरहाल इस आयत में दौरी जाहिलियत में जो जुल्म लड़कियों के साथ होता था या जो नाइंसाफी औरतों के साथ होती है उसका मदावा और उसके बारे में यह आयत नाजिल हुई है। दौरी जाहिलियतस मज गसन कम यम सातन कांस लड़की निकाह ओस यवन करने तो महर तो उस वक्त भी होता था, मगर या तो सिरे से ही शौहर महर अदा ही नहीं करता था, या तो ओसने ये मर्द ये क्या ये महर अदा करन लिख देते थे निकाह के वक्त, मगर उसको वो अदा नहीं करता था। लखन पता दपन होत केम तो द्युत केम और इसी तरह छोड़ देते थे मामला। या तो ऐसा होता था कि ये शौहर ये महर अदा करता था, मगर इस लड़की के जो वली होते थे ये इस लड़की को ये महर की ये रकम महर का पैसा नहीं देते थे बल्कि खुद खा जाते थे। बहरहाल इन दोनों जुल्मों के खिलाफ या इन दोनों रस्मों के खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की। खिताब किन से है? शौहरों से भी है और लड़की के वलियों से भी है। वआतु निसा सदकातिहिन्ना नीला, ए मर्दो ए शौहरों जिनको निकाह करने का जो इरादा है वो अपनी बीवियों को महर अदा करें। यानी इस आयत से पता चलता है जब किसी शख्स को निकाह करने का इरादा हो तो उसे जरूर क्या अदा करना पड़ेगा? महर अदा करना पड़ेगा। महर से ही असल में बीवी जो है या ये निकाह जो है ये ऑथेंटिकेट होता है। यानी शरई हैसियत निकाह के लागन एमी महर से। और ये भी याद रखिए निकाह के लिए कुछ चीजें शरत हैं। निकाह ये जन निकाह सही बनाने खातिर कह चीज शरत, उनकी तफसील बाद में आएगी, मैं सिर्फ इस वक्त इशारा दूंगा। पहली बात ये निकाह खातिर शरत वो है वली या लड़की की इजाजत, यानी लड़की हुंद या वली हुंद इजाजत। दूसरा है गवाहों का होना, यानी गवाहन ब्रोट कहीं आज तस्दीक। और तीसरा है ईजाबो कबूल, यानी ईजाबो कबूल होना। ये महर जो है महर का अदा करना वाजिब है। वाजिब का मतलब है कि ये आत्मज लाजिम वाजिब है, मतलब को कुछ के नजदीक तो ये सुन्नत है, मगर बहरहाल फिक़्ह हनफी में महर का अदा करना क्या है? वाजिब है। अथ निकाह अथ महरस मुतलिक अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि ए मर्दो जिनको निकाह करने का इरादा हो आप इन लड़कियों को इन बीवियों को अपना महर खुश दिली के साथ अदा करो। यानी तावान समझकर या चेट जानित या बड़ मुचरगी सान इस तरह नहीं अदा करना होगा, बल्कि खुश दिली के साथ आपको ये महर अदा करना होगा। और ये थे से याद, महर लड़की की कोई कीमत नहीं है। महर छुने अमिस लड़की हिंस कीमत क्या, बल्कि ये महर असल में इस बात की अलामत है कि ये लड़का ये मर्द जो है ये इस लड़की के हुकूक अदा करने के लिए अब सीरियसली सोच रहा है, इसीलिए इसने अपना माल उसके लिए क्या किया है? खर्च किया है। ये मानते तुम बिल्कुल तिथे पठनस यथ पठनस आख बच गसन यह कर एडमिशन कुछ स्कूलस मज। अब उस स्कूल में वहां की इंतजामिया उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। यानी अगर हसा या स्कूलस में एडमिशन नुन 10,000 रुपये 20,000 रुपये ये थावन एज सिक्योरिटी बॉन्ड, तब हमें यकीन हो जाएगा कि वाकई आप इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सीरियस हो, वरना वो फार्म ले जाएगा बहरहाल ऑथेंटिसिटी के स्वीकार अति एडमिशन। इसी तरह से शरीयत ने इस मुसलमान मर्द को ये लाजिम करार दिया है कि अब आपको इस औरत के हुकूक अदा करने हैं, क्योंकि अन्निसाउ कव्वाम ये मर्द जो है मर्द कव्वाम है किन पर? औरत पर। मर्द को ही कव्वाम मर्द को ही बनाया गया है। ये जन एमसी इख्तियार आमदिन कुमन पे खवातिन। अब इसको किन के हुकूक अदा करने हैं? नान नफका के हुकूक या उनकी रिहाइश के हुकूक, ये किसको अदा करने हैं? मर्द को। अब इसको सीरियसली मानने के लिए और ये चीज ऑथेंटिकेट करने खातिर कि ये मर्द हसा नीवा एमिस लड़की है जिम्मेदारी, इसके लिए शरीयत ने क्या रखा है? महर रखा है। बहरहाल यमुनी शौहर वन कि आप इन लड़कियों को आप अपनी बीवियों को खुश दिली के साथ महर अदा करो। और दूसरा इसमें किनको भी खिताब है? उन वलियों को भी, यानी जो लड़की के वली होंगे, कि आपने अगर इस शौहर से मर्द से
महर लिया है, ये आप खुद नहीं खा सकते हैं, बल्कि आपको किसको अदा करना पड़ेगा? इस लड़की को अदा करना पड़ेगा जिसका निकाह हो रहा है। आम तौर पर अत मज आज किस दौरस मज कोताही, आज क्या करते हैं, या तो महर की रकम इतनी ज्यादा लिखवा देते हैं कि वो मर्द बेचारा महर अदा करने से बिल्कुल आजिज होता है। कहां लिखना 40 लाख रुपये महर, 50 लाख रुपये महर, जबकि उस लड़के की इतनी हैसियत नहीं होती है। ये ज्यादा महर लिखना भी असल में शरीयत में इसकी ज्यादा ये जन तरगीब नहीं दी गई है, बल्कि फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तो बरकत वोल निकाह सो यथ मज कम खर्च ये करना, कम खर्च से मुराद जिसमें महर कम रखा जाए। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान है, उन्होंने बताइए, उनके बारे में आता है कि वो लोगों से कहते थे, लोगों महर ज्यादा मत तय किया करो, महर में ऐसी तो ज्यादा तय करन के, क्योंकि ज्यादा महर तय करना ये तकवा की या खुदा खोफी की अलामत नहीं है। अगर ये तकवा या खुदा खोफी की अलामत होती तो इसके सबसे ज्यादा हकदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी तब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का महर बहुत बड़ा चढ़ा कर देते, मगर उनका महर बिल्कुल मामूली महर था, सिवाय उम्मे हबीबा को छोड़कर जिनका महर नजाशी ने अदा किया था। इसलिए ये तर आओ वन कि वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, ए मर्दो जिनको निकाह करने का प्रोग्राम हो, जिनको निकाह करने का इरादा हो, वो अपनी बीवियों का महर खुश दिली के साथ अदा करें। अच्छा, ये भी याद रखिए, अब ये आयत किन के लिए भी है? औरत के वलियों के लिए भी, यानी उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप इसको अपनी इस्तेमाल में, आप इसको अपने पास मत रखिए, बल्कि यह असल में किन का हक है? लड़कियों का हक है। हाँ, बाद में चलकर कहा गया फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु, हाँ, अगर अपनी मर्जी से ये लड़की ये महर, इसका कुछ हिस्सा या पूरा महर ये माफ कर दे, तो फिर तो दूसरी बात है फकुलू हनिया मरिया, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसको खा सकते हो बड़े मजे के साथ, यानी बेहतरीन अंदाज में। ये किन से खिताब है? ये मर्दों शौहर से भी खिताब है और वली से भी, यानी लड़की ने महर हासिल किया, लड़कन द्युत एमिस महर, अब ये लड़की इसको महर माफ करती है, इसका कुछ हिस्सा या सारा ही महर माफ करती है, अब तो लड़के के जिम्मे से ये महर साकित हो गया, अब वो उस पैसे को या उस माल को आसानी के साथ अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इसी तरह अगर लड़की ने महर लड़के से वसूल किया, अब ये अपने किसी वली को, बाप को, भाई को ये महर की रकम या महर का पैसा देती है और इसे इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, तब वली भी आसानी के साथ और अच्छे और भले तरीके से इसको खा सकता है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता सबसे बड़ा हक और पहले इसको हक किसको बनाना होगा? बहरहाल गॉड पे दिन हिमिस। अच्छा, दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सा, यहां पर मिन्हु नफ्सा का लफ्ज कहा गया, मिन्हु कल्बा नहीं कहा, दिल की रजामंदी यहां नहीं कहा गया, बल्कि नफ्स की रजामंदी कहा गई। उससे मुराद क्या है? उससे उलमा ने बताया है कि अत औरत यजन बाज़ाहिर आसन इंतहाई, मान लीजिए इसमें इंतहाई नरमी होती है, औरत जात में नरमी होती है, और औरत जात को अगर मामूली तौर से समझाया या फुसला बहला कर कहा जाए तो ये बिल्कुल फौरन ये समझ जाती है या ये बहकन। इसलिए यहां कहा गया नफ्सन, यानी कि इसको आप किसी तरह से दबाव डालकर, इसको आप समझा बुझा कर कहेंगे कि हाय बुशिस ने वंचा खानदार, या अब तो आपको मेरे ही घर में रहना है, या खामद इस पर दबाव डालेगा कि अगर न माफ करे कि क्यों ना महर, तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो ये बेचारी औरत डर के मारे फिर ये बादिल नाखास्ता क्या करती है? ये माफ करती है। शरीयत में इसको माफ नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसके जिम्मे फिर भी महर अदा करना होगा। ये जरूरी का दयम का। अब अगर इसका वली कोई है, इसका बाप, इसकी माँ या इसका भाई कहता है हो अखराजात खानदरस मज चानसी खानदरस पे लागो पोस, इसको ये इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे या इसको ये इमोशनली तैयार करेंगे कि आप ये महर के रकम या महर के पैसे हमें दीजिए, हम आपकी ही शादी में इसको लगाएंगे। अगरचे लड़की दिल्ली तौर पर रजामंद आसन क्या, मगर बाप की या इस माँ की या वली की मजबूरी समझकर या इमोशनली गई ब्लैकमेल, इसको ये वापस देती है किनको, तब भी ये माफ नहीं होगा। उन वलियों के लिए इसका पैसा खाना ये जायज नहीं होगा। बल्कि अगर लड़की बात रजामंदी के साथ, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी या बहलाने फुसलाने के ये अपनी ये रकम किसी को देती है, तब तो इसको इस्तेमाल में लाने की इजाजत है। दयम का तजय्या यही इतलाक
इसी बात का इतलाक वरासत पर भी होगा, जो आगे वरासत के हुक्म आएंगे। आमतौर पर हमारे माशरे में क्या होता है, वैसे तो पहले हम लड़कियों को या औरतों को सिरे से ही वरासत से बेदखल करते हैं। आमतौर पर सानिस माशरस में असूल और बनोमुत पाने यह है वस तान कम दित लड़कियन हिस्स, हालांकि वस तान कम दित क्या दित वो तो एक बात, शरीयत तो एक बात है। यही मामला हम करते हैं किस पर, वरासत पर। वनान कि आमतौर पर कोड़न ये हिस्स वातन दलील तुम वन हो दित यह हिस्स पन्निस बयस, यह गि पुरसन असल पस, यह गि रोजन अत यमिस अत सलाम तरिस या सनिस खानदान अत गई इज्जत कर रोजन यीजन पे पुरसन, युत सान खतर काफी हिस्स गो अमसी। इनसे हिस्सा माफ नहीं होता, ये याद रखिए। और इस तरीके से अगर भाई इस बहन का हिस्सा लेता है, ये गस्ब करता है, रोज क़यामत इसको इस हिस्से का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये माल उसने उस बीवी या उस बहन की या अपनी माँ या अपनी किसी और ये जरा हिस्सा उस लड़की की इजाजत से या दिल्ली मैलान से नहीं हासिल किया, बल्कि वो बेचारी मजबूर होकर ये समझ करके पगा सन में त्रयित मैं दिन या गारस पर ठसना इस पर कौश पर आजमान, तो इनसे ये हिस्सा माफ नहीं होता है। बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखमत कि हिस्सा माफ होने की या इस महर को माफ करने की एक सूरत है, वो ये है कि पहले इनको महर अदा किया जाएगा, महर रकम ये अमिस दिन ये आप मालिक बनाना, इसी तरह हिस्सा भी इसको लड़की को दिया जाएगा। फिर बाद में चलकर अगर वो अपनी रजामंदी से इस महर की रकम को या उस हिस्से को किसी भाई को या बाप को या किसी और को देती है, तब तो वो मजाज है, तब माफ होगा। वरना आमतौर पर इस कशीर में रिवाज बनोमुत हो में पुरसन योतन मे कर यीजन पे साल बाकियन दोहन पे साल बह गस चानिस घरस पे ठसन रोजन लायक, इससे ये महर या हिस्सा माफ होगा। इन चीजों से महर या हिस्सा माफ, बल्कि बरोज क़यामत इनके बारे में हिसाब होगा। बल्कि इसी आयत में सूरह निसा जज़न दयम आयत पढ़, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था वला तअकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम, एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। बल्कि हदीस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमो वला तज़लिमू, कि एक दूसरे पर जुल्म मत करो, वला तअकुलु अमवाला बैनकुम बिल बातिल, और एक दूसरे का माल बातिल तरीकों के साथ यानी गलत तरीकों के साथ मत खाया करो। इसकी वईद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरा अपने अहादीस में बयान की है। इसलिए अत कत कुन चीज अहम तवज्जो आज के माशरे में ये बुराई ये बद ये जन अत क्या वन ये रस्म ये जन बदकिस्मती के साथ ये दौरी जाहिलियत में थी, मगर आज भी हमारे माशरे में ये बुराइयां और ये रस्में चल रही हैं। दयम का जैसा अत में बड़ इंपॉर्टेंट वो ये है, महर के मामले में आप एक बात याद रखेंगे, इसी पर मैं फिर कंप्लीट करूंगा। ये महर युजन ये लड़की हुन हक, ये किसका हक है? असली तौर पर लड़की का हक है, मगर महर की रकम कितनी होगी? मैंने अभी हदीस आपके सामने बयान की कि रसूलुल्लाह ने फरमाया महर जितना कम होगा उतना निकाह में क्या है? बरकत। अब महर की कम से कम ये मिकदार कितनी है? बहरहाल तमाम यमजर आइमा अरबा यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा को छोड़कर बाकी तीन इमाम जो हैं उनके यहाँ कम से कम महर की कोई भी मिकदार मुकर्रर नहीं है। बल्कि इमाम शाफी के यहाँ महर चंद पैसे भी हो सकता है, यानी इमाम शाफी के यहाँ चंद पैसे भी क्या हो सकती है? महर, मगर बहरहाल महर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और हदीस में आता है कि बाज़ सहाबियों का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया है, तो सहाबी से कहा गया कि आपके पास अपनी बीवी को देने के लिए कुछ महर है? तेम को अर्ज सहाबियों पर अर्ज बाज ऐसे भी निकाह कि मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या आपके पास या आपके दिल में कोई कुरान की सूरत या कोई कुरान की आयत नहीं है? बहरहाल सहाबों को हाँ रसूलुल्लाह फलानी सूरत मुझे याद है, फलानी आयत मुझे याद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी बीवी को यही सूरत या यही आयत याद करा दो, यही इसका क्या बन जाएगा? महर बन जाएगा। बहरहाल इमाम अबू हनीफा इसके कायल नहीं है, वो कहते हैं ये तो इस्तिस्नाई सूरत थी, ये तो वो हालत थी कि इमाम अबू हनीफा को छोड़कर जो बाकी इमाम है वो कहते हैं क्योंकि कुरान पढ़ाने में भी उजरत लेना जायज़ है, इसलिए उस वक्त उसकर उजरत का इतलाक होगा। यानी तमिस बीवी पे है उजरत दी ये कुरान हेचने का, तो उसी उजरत के इवज में उसको क्या बना दिया गया? महर बना दिया गया। इसलिए हदीस में बीज आमद किसी सहाबी ने लोहे की अंगूठी दी अपनी बीवी को, किसमें? यानी लोहे की अंगूठी उसकी क्या कीमत होती है? यानी शिश्तर खोंडा। तो बहरहाल इसी से इस्तेदलाल किया है फुकहा ने, उन तीन इमामों ने, कि महर की कम से कम रकम
जो है उसका भी कोई तयन नहीं है, चंद पैसे भी महर की कम से कम रकम हो सकती है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कम से कम महर की रकम जो है वो 10 दिरहम है, यानी कम खुद कम ये जन क्या रकम वो कितनी है, वो हदीस से, इसलिए अगरचे उस हदीस पर कलाम किया गया है मुहद्दिसिन ने, ज़ईफ रवायत है कि हदीस में फरमाया रसूल असमो कि कम से कम ये जन क्या महर वो 10 दिरहम है। मगर इमाम अबू हनीफा ने इससे इस्लाह किया है, अगरचे हमें शरीयत में कोई दलील नहीं मिलती है कम से कम महर की, मगर चूंकि ये रिवायत तो है, अगरचे ये ज़ईफ ही है मगर रिवायत है, तो इसलिए हम हदीस पर ही अमल करेंगे। इसलिए इमाम अबू हनीफा के नज़दीक कम से कम महर की रकम यजन वो 10 दिरहम है। मौजूदा दौर में उसकी कीमत 32 ग्राम चांदी बनता है। 32 ग्राम चांद यजन सह कम से कम महर कमन नजदीक, अगर इससे कम पर महर रकम रख दी जाए तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक वो निकाह बहरहाल वो जायज नहीं है, बल्कि सो महर थाउन जायज इमाम अबू हनीफा के नजदीक, यानी 32 ग्राम। अब आप खुद मालूम करेंगे कि 1 ग्राम चांद कतिश आज जीवन, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 32 ग्राम से उतनी रकम होनी चाहिए क्या, महर की। दूसरी बात आप याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा रकम महर की कितनी है, बहरहाल इसका भी तायुन कुरान ने नहीं किया है, बल्कि कुरान ने इस आगे चलकर हम आयत नंबर 37-38 में पढ़ेंगे सूरह निसा में ही कि अल्लाह तबारक व तआला ने महर के लिए किंतारुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। किंतार कहते हैं सोने का ढेर, अब उसकी कितनी कीमत होगी उसका तो हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा महर की भी कोई हद शरीयत ने मुकर्रर, बल्कि आपने वो वाक़ा मशहूर वाक़ा सुना होगा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दौरी खिलाफत में महर की रकम को मुतय्यन करने का सोच लिया था। तमाम सहाबा को जमा किया मस्जिद में, तो मेंबर पर कहा कि आज हम महर की रकम को मुकर्रर करना चाहते हैं, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ कर महर अदा करने लगे थे उस जमाने में। बहरहाल अगर आजुक जमाना ऐसे जहां पर आज 50-50 लाख 60-60 लाख महर लिखते हैं, उस जमाने की बात उमर फारूक ने कहा कि लोग महर में अब ज्यादती करने लगे हैं, इसलिए हम महर की रकम को क्या करेंगे, मुतय्यन करेंगे। बहरहाल अत बड़े बड़े कुबार सहाबा बिहत, कोने में एक बूढ़ी औरत थी, वो खड़ी हो गई, उन्होंने उमर को कहा, उमर आपकी इतनी मजाल कि आप अल्लाह के हुक्म को और अल्लाह के कानून को बदल दोगे। हजरत उमर फारूक को क्या, बहरहाल उन पर कपकपी तारी हो गई। उमर के बारे में आता है कि शरीयत का कोई भी हुक्म जब आता था तो वो इतना ही नरम पड़ जाते थे, अगरचे बातिल पर वो इंतहाई सख्त थे, मगर ये शरीयत तो क्या कुरान हुक्म का ये वो इंतहाई नरम पड़ते थे। बहरहाल फिर उस बूढ़ी बी ने यही आयत क्या शनन तिलावत की थी, जिसमें महर के लिए किंतार का लफ्ज आया है कि अगर आप चाहें तो किसी को सोने का ढेर भी दे सकते हैं। उमर फारूक वो खड़ा, उन्होंने शुक्रिया किया इस बड़ी बी का कि बड़ी बी आज आपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से उमर को रोक दिया है। बहरहाल इससे पता चलता है कि महर की ज्यादा से ज्यादा लिमिट यजन वो भी शरीयत ने मुतय्यन नहीं की है। अच्छा, अब इसमें एक बात वो पतिम 2-4 रेत वत निकाहन सर, मैंने निकाहों अपने में देखा कि कितनी खराबियां हमारे निकाह में, इसलिए मैं इस मसले को बयान करना चाहता हूं। वो ये है कि महर कौश सारे को बेहतरीन रकम, कम महर भी ज्यादा पसंदीदा नहीं कि इतना महर जो बोझ ही ना पड़े इस पर किस पर एमिस बाशी ने, कम महर रखना भी शरीयत में ज्यादा क्या मुनासिब नहीं है। क्यों? इससे तो फिर लड़के या मर्द आजाद हो जाएंगे, बार बार पर तलाक देते फिरेंगे। लड़की आज मामूली गलती का तलाक देंगे, भाई मैं कोता महर से दो नहीं, 3 पैसे 4 पैसे 400 जो है, या 10 दिरहम 32 ग्राम सोना ये चांदी, वो कितना उसकी कीमत ही आज के जमाने में कितनी आती। इसीलिए शरीयत ने हर लिहाज में और हर माशरे में महर की जो बेहतरीन रकम और मुस्तहब रकम है उसे कहा जाता है महरी मिसल। कुछ महरी मिसल का ये याद रखिए, महरी मिसल उस महर को कहते हैं जो उस माशरे में मुरवज्जा हो और उस किस्म की या किसी औरत से निकाह करने का इरादा हो, उसकी बहन को देखा जाएगा, उसके घराने को देखा जाएगा और उसी हिसाब से महर मुतय्यन किया जाएगा। बकर ये एग्जाम्पल या एक्सप्लेन फिर हम जाएंगे। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं किसी लड़की से, एक लड़के को किसी लड़की से निकाह करने का इरादा है, अब उसे महर अदा करना है। कितना महर अदा करना होगा? मुस्तहब महरी मिसल। महरी मिसल का मतलब क्या है? उस लड़की को देखा जाएगा कि उसके खानदान वालों ने इससे पहले अगर किसी लड़की का निकाह किया है उसका कितना निकाह ये महर मुतय्यन, तम बे कुछ महर आमुत दिन, तम खानदानस मज तम पितर बे या तम का नजदीकी लड़की तमिस कुता आ महर दिन। दूसरी बात, उसकी शक्लो सूरत को देखकर, उसकी लियाकत को देखकर और उसकी जहानत को देखकर भी महर मुतय्यन किया जाएगा। कहाँ लड़की आसन
सो बिचार मानते तो अकली की कमजोर, शक्ल की कमजोर, उसका महर उसी हिसाब से मुतय्यन किया जाएगा। इसके बरक्स कोई लड़की उसका हुस्न जमाल कमाल का है, उसमें जहानत और फतानत कमाल की है, और उसके खानदान वालों में भी रिवाज है कि वो 5-5, 6-6 लाख रखते हैं क्या महर, तो उस वक्त उसके लिए वही महर मुनासिब होगा। इस महर को कहते हैं महरी मिसल। अच्छा वाला कोर्स महरी मिसल। ये तो एक बात। आखिरी बात, आम तौर पर रिवाज जीवन महरी फातमी भी रखते हैं। उलमा इस पर जोर देते हैं कि महरी फातमी था। इसे महरी फातमी किसको कहते हैं? महरी फातमी को सो महर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का मुतय्यन किया था। उनका निकाह किन से हुआ था? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने जो महर अदा की थी, हालांकि वो तो खुद रसूलुल्लाह से नहीं अदा की थी, क्योंकि तुमन वली कुस हजरत अली सुन वली थी हजरत उम्र या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हजरत अली ने जो महर अदा किया था हजरत फातिमा को निकाह के वक्त, उस महर को कहते हैं महरी फातिमी। क्या महरी फातिमी? उसकी कितनी मिकदार है? बहरहाल उलमा ने लिखा है उसकी मिकदार है 12.5 ओकिया। 12.5 ओकिया। ओकिया अस्तमन दोहन करेंसी यजन ओकिया जो होता है, एक ओकिया 40 दिरहम के बराबर होता है। आख ओकिया कजन दिरहम बराबर 40 दिरहम। अभी हमने पढ़ा 10 दिरहम कितने होते हैं? 32 ग्राम। एक ओकिया होते हैं 40 दिरहम के बराबर। इस हिसाब से 12.5 ओकिया कितने हो गए? तुमके 5 दिरहम। यानी हजरत फातिमा का जो महर था वो कितना था? 12.5 ओकिया या 500 दिरहम। ये आपको इस तरह इस पर फिक्र। ज़कात केमिस पे गसन वाजिब, ज़कात केमिस पे फर्ज गसन? यमिस निश 52.5 तोल क्या चांद, जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो उस पर ज़कात फर्ज। 52.5 फिर दोबारा 52.5 कुता गो हाथ गुना हाथ इत पढ़ना। इसी तरह से 52.5 तोला 52.5 तोला उसको 200 दिरहम के बराबर होती है। वो 52.5 तोला फिर जोड़ दो, गए 400 दिरहम। फिर उसका नसब यानी अख ज़कात रकम ये पे बी तीजा ज़कात रकम पे तमिक नसब यीचा रकम कर अदा हजरत अली केमिस हजरत फातिमा का महर की रकम। फिलहाल आप जबानी याद रखेंगे 12.5 ओकिया या 500 दिरहम। मौजूदा दौर में उसकी कीमत बनती है यजन बनन 31 तोला 3 माशा चांदी, 31 तोल 3 माशा चांदी। और अगर ग्रामों में करेंगे हम, वो बनता है 1.5309 किलोग्राम, यानी 1.5 किलो चांद तमको थोड़ा बहुत अलाव। अगर आज के दौर में आप इसकी कीमत मालूम करना चाहें, लगभग 3 to 3.5 लाख रुपये आज के जमाने में। तो इसको कहते हैं महरी फातिमी। इस महरी फातिमी को रखना भी मुस्तहब बताया है उलमा ने। उलमा कि अगर महरी फातिमी ही रखा जाए ये भी मुस्तहब को बेहतर है, क्योंकि इसमें लगभग जमाने की भी यजन क्या रियायत उसका भी थोड़ा बहुत यजन या एहसास आम। बहरहाल हासिल कलाम आयतुक ये कि जब भी किसी मर्द को निकाह का इरादा हो तो उसे अल्लाह तबारक व तआला ने तलकीन की है कि वो अपनी औरत होने वाली बीवी को महर अदा करे, और वो महर उसी को अदा की जाएगी, वही उसकी मालिक होगी। और वलियों को भी यह हुक्म है कि अगर आप मर्द से या लड़के से महर वसूल करेंगे, वो महर आप खुद नहीं खा सकते, बल्कि वो किसकी अमानत है, वो किसकी असल में मिल्कियत है? उस लड़की की जिसका निकाह होने वाला है। हाँ, अगर वो लड़की खुश दिली के साथ आपको ये निकाह ये महर माफ करे तो उसका कुछ हिस्सा या पूरे का पूरा उसको आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े भले तरीके से उसमें खाने की कोई कुबाहत नहीं है। ये शे में आयतुक मतलब। दूसरी बात आप में जैसन अहम का वो ये भी है कि इससे पता चला कि महर की असली मालिक कौन है। महर से असली मालिक सच लड़की। इससे पता चलता है शरीयत में कि लड़की भी माल की मालिक बन सकती है। ये सर आमतौर पर आज की दुनिया में मरो वजह है लड़की कहते मालूक मालिक है, लड़की कहते प्रॉपर्टी मालिक है। इससे पता चलता कि नहीं, लड़की भी प्रॉपर्टी की भी या माल की मालिक हो सकती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलू हनीअम मरिया। बस अगर वो इसमें से कुछ हिस्सा या पूरे का पूरा महर माफ करना चाहे तो आप उस माल को, उस रकम को बड़े खुश दिली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें खाने की कोई कुबाहत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दीन ऐसे यमन कथन पर अमल करूँ तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।